very warm welcome to our first panel discussion of the day on a topic that lies at the heart of artistic innovation and economic sustainability: master artisans and current market trends. Joining us today are individuals whose expertise spans the realms of craftsmanship, entrepreneurship, and market analysis. Few things I just share with you for the knowledge of all those people who are sitting here, whom we call artisans. Generally, what happens, we call handloom and handicraft both as artisans. But it's not like that. The persons who practices handloom, we call it weaver. And those who practice crafts, we call artisans. So here it is master artisan, means we'll talk only about the handicraft. As you know, the definition of handicraft is anything predominantly made by hand. We can use little bit of tools and the objects must be beautiful, artistic, aristocratic. It's known as handicraft. Same definition GST Council has also given, and this is the definition of handicraft given by Supreme Court of India. So once we define the handicraft, I tell you that in India there are more than 30 lakh of artisans. More than 30 lakh of people do get sustainable employment from the handicraft sector. We export more than 30,000 crores of rupees of handicraft items. And if we include the domestic production, it crosses 40,000 crore rupees. So this is the potential of this handicraft sector. Definitely from last 2-3 years, the export has reduced, but not that much. Little bit reduction has taken place in the export sector. Now it's time to give more and more importance not only to export but domestic market also. Because if you go and see any international market exhibition, here Amla is sitting here. She has seen lot of international events where exporters are there. I think most of the Indians might not have seen those type of beautiful and exquisite variety of handicrafts. Now our country has potential. People are there to purchase those handicraft items. If those exporters, those exportable handicraft items are exhibited in the domestic market. Master artisans, for the first time in last 3 months in Office of Development Commissioner Handicraft, we made an exercise to find out that how many master craftspersons are there. Till date, we have made around 1,100 master artisans, master craftspersons. Master craftspersons, we include all those awardee artisans. I think you know that in handicraft sector, to appreciate the work of artisans, Government of India gives Padma Award, Silp Guru Award, National Award. Earlier there was one more award called as National Merit Certificate, but that has been now stopped. Now only from the Development Commissioner Handicraft Office we are giving Silp Guru Award and National Award. Some state governments are giving recognition to the artisans by giving them a state award also. So if we have, by including all these awardee artisans, we have made a list of more than 1,000 artisans, around 1,100 master craftspersons available in our country. And these master craftspersons have ability to develop any kind of design given by the designers. The role of designers in handicraft sector, the importance of design is known to each and everybody. Without a good design, without a market-friendly design, without a design which attracts the common persons,
our handicraft items cannot be sold. You just for an example, I tell you that you see the terracotta. Terracotta craft is, I think, oldest craft in the world. And this terracotta craft, how much development has taken place? What not available in terracotta crafts? Varieties of things which are being used by the people. So this kind of work has been done by taking the help of designers, and these designers are playing a great role in development of these handicraft items. If we go to the market, export, let's talk about first export. I think hardly 30 to 40 handicraft items have more export value, like wood items, art metal items, these having more export value. But at the same time, carpet is equally important than art metal, wooden crafts, furniture items, and all that. So here, the market, if we talk about the number of handicrafts, more than 450 types of crafts items have been identified by the NIFT in recent survey. So out of 450 types of craft, in which there are number of crafts which are just for ceremonial things, some religious items which are sold only on occasionally, but major items are those which are exported, and in domestic market it is having much of the use. So now with these elements of information, now I request Madam Gunjan to share her view. Thank you so much, sir, for your introduction note. It was very enlightening, especially to hear the facts and the figures, which is very rare that comes out. And I think we need more and more of these kind of research and documentation to understand what kind of numbers are we talking about when we say it's the second largest employment generation in the craft sector. So thank you so much for the introduction. And namaste, good morning to all of you. It's a lovely sunny morning. I was walking into the Red Fort, reminiscing the history and the history of India, of course. And, you know, we all have come together. And there is a couplet that comes to my mind that I'd like to share with you. कपड़ों पे बुनी हुई दास्तानों से गुजरो, कपड़ों पे बुनी हुई दास्तानों से गुजरो, तो कई किरदार मिलते, गए वक्तों की मुंडेरी पे खड़े कुछ यार मिलते, गए वक्तों की मुंडेरी पे खड़े कुछ यार मिलते हैं, गुजरे हुए इतिहास के आईने में और आज की कला और कलाकारों में आने वाला भविष्य दिखाई देता है. ऑन दिस नोट हमारे साथ 4 बहुत ही प्रसिद्ध मास्टर आर्टिसंस आज मौजूद है और इन्होंने हमारे साथ रहने के लिए दूर दूर तक यात्रा की है. तो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए. ये सभी अपनी क्राफ्ट के संबंधित क्षेत्रों में हाईली स्किल्ड और क्रिएटिव प्रैक्टिशनर्स हैं और आज की चर्चा में कोशिश रहेगी इनके अनूठे अनुभव के माध्यम से हम अपनी क्राफ्ट को किस तरह से आज की दुनिया में इनोवेशन के जरिए स्थायी रूप से लाभदायक बना सकते हैं और मार्केट के लिए रेलेवेंट, और ऑफ कोर्स रास्ते में आने वाली चुनौतियों के ऊपर भी बातचीत की जाएगी. तो मैं सबसे पहले बाबू भाई के साथ शुरू करना चाहूंगी. बाबू भाई का इंट्रोडक्शन अगर दूं मैं, तो बाबू भाई राठौर has been working as a Tangalia weaver for the last 30 years. And about 20 years ago, he realized that this craft was dying and adopted it to begin its revival. Traditionally practiced on wool, Babu Bhai made the decision to switch to cotton and cotton silk, paying heed to contemporary market trends. He has trained 13 artisans in his community in the craft of Tangalia
and has held several workshops for college students. Project Atman has led him to design new products in the craft with contemporary themes that cull out facts about men and women engaged in the Indian handloom sector. He is most proud to have contributed to the design development of his beloved craft. बाबू भाई, आपने यहाँ ABCD जैसे मैंने कहा इंक्यूबेशन में तांगलिया वीविंग की क्राफ्ट को दर्शाया है. सुना है आपसे ही कि 20 साल पहले तांगलिया वीविंग की कला लगभग लुप्त हो गई थी, है ना? और बहुत ही कम बुनाकार इस कला से जुड़े हुए हैं. क्या कारण हो सकता है इस कला का विलीन होना? थोड़ा बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपने किस प्रकार से तांगलिया वीविंग की नवरचना की और उसका फिर एक नई जिंदगी दी. शुरुआत में आपने एक सवाल किया कि आपने जो कला लुप्त हो रही थी इनके बारे में बताए. तो पहले मेरी जो कहानी है मैं आपको सुनाता हूँ. इनकी एक वार्ता है. हम जो है डांगरसिया कम्युनिटी, ये राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं. और 700 साल पहले जो हमारे साथ एक घटना हुई है, ये घटना की मैं बात कर रहा हूँ. हम पहले वो जो भरवाड़ कम्युनिटी बोलते हैं, भेड़ का जो व्यवसाय होता है, उन कम्युनिटी हम थे. तो हमारे पास घेटा बकरा ये सब था, पशुधन. और वहाँ राजस्थान में व्यूअर भी बहुत लोग हैं, वहाँ भी बुनकर है. तो यहाँ का जो बुनकर की एक लड़की थी, वो हमारे घर दूध छाछ ऐसा लेने के लिए आते थे. तो इसमें क्या हुआ, इस जमाने में हमारा लड़का और ये बुनकर की लड़की को साथ संबंध हो गया. तो एक दूसरे ने शादी करने का भी तय हो गई, शादी भी कर लिया. तो इस जमाने में थोड़ा छूत अछूत का जमाना था. तो जो हमारी कम्युनिटी थी भरवाड़, इस लोगों ने हमारा बहिष्कार कर दिया और हम वहाँ से गुजरात में चले आए. गुजरात में सुरेंद्रनगर जिला है, वहाँ हम बसे. तो हमारे पास कुछ इस टाइम बिजनेस नहीं था, रोजगार मिलने का साधन कोई नहीं था. तो हमने ये सोचा कि हम कुछ नया कुछ करेंगे. जो हमको एक चोट लगी है, एक ठेस लगी है, तो हम इनमें से कुछ बाहर निकलने के लिए कुछ नया सोचे. तो हम जो है भरवाड़ लोग, हमको थ्रेड बनाने की, हम थ्रेड बना सकते हैं जो तकली से बनाते थे पहले के ज़माने में. ऊल की. हाँ, ऊल की जो तकली से थ्रेड बनता था वही. और वो बुनकर की जो लड़की थी उनको वीविंग का नॉलेज था. हाँ, तो दोनों ने मिलकर एक काम किया वीविंग का वहाँ, और सोचने लगा कि हम इसमें नया कुछ क्या करें. तो जब हम कुछ नया कुछ सोचते हैं, नया कुछ करने जाते हैं, तो हमारे हाथ में जो कुछ होता है रगड़ते हैं हम. जो कोई गला में माला है, हाथ में वीटी है, तो कुछ दिमाग लगाते हैं तो हाथ में रगड़ते हैं वही. हाँ, आगा कैसे बनाया जाए. हाँ, वही बात है. तो हम लूम में बैठे और हाथ में जो कच्चा थ्रेड था, इस टाइम तो कच्चा थ्रेड था, ट्विस्ट वाला नहीं था. तो हाथ में थ्रेड लगकर वो ऐसे ऐसे घुमाया, विचार कर सोचने लगा क्या करें हम. तो इनमें से एक डॉट्स का जन्म हुआ, जो दाना बनता है वही. तभी से डॉट्स का जन्म हुआ, तभी हुआ है. और हम सोचा कि डिजाइन कैसे बनाए. तो हम तो जंगल में रहने वाले थे, तो जंगल में पेड़ देखा, जानवर देखा, पक्षी देखा, सभी अलग अलग कलर देखे. वो सब हमारे जो प्रोडक्ट है टांगलिया, इसमें हमने सब में डाल दिया. तब से वो टांगलिया नाम पड़ा है प्रोडक्ट का. और हमारा जो बिजनेस था वो एक ही कम्युनिटी के साथ था, जो हमें बनाते थे टांगलिया की प्रोडक्ट ऊन में, हाथ से स्पिनिंग करके, हैंड वूम करके, वो इनकी महिलाएं पहनती थी और दूसरे लोगों के साथ इनका व्यवहार नहीं था. तो धीरे धीरे करके 700 साल हो गया एक ही सीजन में. तो अब क्या हुआ, 20 साल पहले हम गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, वहाँ भी ये रहता है
लोग भरवाड़ जो कम्युनिटी है हमारे से खरीदते हैं वो भी। तो आजकल फैशन का ज़माना आ गया है, गांव में भी फैशन है। लड़का जो इनकी लड़की है जो पहनती है वो चढ़िया हमारा जो बनाया हुआ वो इसने बंद कर दिया। तो हमारा जो बिजनेस था, हमारा जो विविंग करने का तरीका था, वो सब लोगों ने बंद कर दिया। तभी मैंने सोचा कि ये जो हुनर है हमारे पास ये पूरे देश में कहीं नहीं है, तो इसको बचाना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा सोचा इसमें, और जो ऊल का कपड़ा था आजकल लोग पहनते नहीं हैं, तो हमने सोचा कि हम कॉटन में बनाए। तो ये जितना मोटिव्स है हमारा ट्रेडिशनल, ये सब हमने कॉटन में कन्वर्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे करके हमने ये आगे बढ़ाया है। ऐसी तरह से हम अभी यहाँ पहुंचे हैं। लास्ट 10 इयर्स में आपको डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम ऑफिस से तंगालिया विंग को प्रमोट करने के लिए काफ़ी मदद दिया गया है, और लगभग हर मार्केटिंग इवेंट्स में आपको तंगालिया वीवर को जगह भी दिया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। इसके ऊपर में आप कुछ बताइए। अभी जो जीआई फेयर चल रहा है पूरे देश में, हमारी जो टांगलिया है तो जीआई प्रोडक्ट है, तो वहाँ भी हमको प्लेटफॉर्म मिलता है, जितना जो मेला लगता है वहाँ भी। और इंडस्ट्री है गवर्नमेंट गुजरात, उनका भी लगता है मेला, तो वहाँ भी हमको प्रमोट करने के लिए हमारा जो स्टॉल है वो हमको फ्री में देते हैं, और 5,000 रुपया भी देते हैं स्टाइपन करके। और जो हम डेमो लेकर जाते हैं तो डेमो का भी जो लगता है ट्रैवलिंग खर्चा वो भी देते हैं इंडस्ट्री। ये सब इंडस्ट्री वाला हमको प्रमोट करता है। और गुजरात में एक और भी है मिशन मंगलम लाइवलीहुड, गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, इनमें भी हम जाते हैं, वो भी हमारा सब खर्चा TADA का खर्चा भी लेते हैं, वो भी सपोर्ट कर रही है। ये आप लोगों को, जैसे इन्होंने कहा कि विलुप्त होता जा रहा है, जो गवर्नमेंट में डेफिनेशन है विलुप्त का, इंडेंजर्ड क्राफ्ट का, तो इंडेंजर्ड क्राफ्ट में जिस क्राफ्ट में अगर 25 लोगों से कम लोग हैं तो उसको हम इंडेंजर्ड क्राफ्ट मानते हैं। तो तंगालिया विभिन्न भी जो है इंडेंजर्ड में आ गया था, लेकिन आज के डेट में अब ये इंडेंजर्ड क्राफ्ट नहीं रहा। यहाँ नंबर ऑफ आर्टिजन्स वीवर्स जो है अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। आई थिंक 100 के लगभग तो हैं, 100 नहीं हुआ अभी तक। तो ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग स्टोरी है कि 25 से कम एक टाइम के जो रह गए थे बुनकर, अगर आज की स्थिति में और आज के AI के जमाने में अगर इस तरीके की लुप्त कला वापस लाई जा सकती है, उसमें बुनकारों का विश्वास, उनका मेहनत, उनकी इनोवेशन एंड ऑफ कोर्स सरकार का सपोर्ट, इट इज अ कलेक्टिव दैट मेक्स अ क्राफ्ट रिवाइवल स्टोरी अ सक्सेस स्टोरी। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये सुन के कि जो आपने बोला कि जब हाथ से आप काटते हैं धागा तो उसमें से जो नॉट्स निकलती है, क्राफ्ट में बोला जाता है डिफेक्ट इज एन इफेक्ट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आपने उसी नॉट को एक कला में बदल दिया एज अ टांगलिया भी। आपसे मैं आना चाहूंगी रीता जी आपके पास। रीता जी, आपकी इंटरेस्टिंगली बाबू भाई से बिल्कुल अलग कहानी है। आपने आसाम की एक आधुनिक कला अपनाई है जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ वीविंग, जो आपने ABCD सेंटर में भी दर्शाया है। वाटर हाइसिंथ ये नायाब चीज जो पानी में उगती है, इसके बारे में कुछ बताइए। आप इस क्राफ्ट से कैसे परिचित हुई और इस जंगली पौधे को किस प्रकार आपने उपयोग किया है अपनी शिल्प में? मेरा नाम रीता दास है। मैं असम का धुबरी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मैं नेचुरल फाइबर स्पेशली वाटर हाइसिंथ पर ज़्यादा काम करती हूँ। मैं 1997 सन में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसका मेरे पास कोई काम नहीं था। छोटा उम्र में पिताजी माताजी गुजर गया, तब मैंने जूट का ऊपर काम किया था। तो जूट के काम के बाद मैं गुवाहाटी दिल्ली प्रगति मैदान में एक प्रोग्राम में आया था। तो उधर में ही मुझे नेटफी से मुलाकात हुआ। तो नेटफी वाले ने बोला हमारा उधर नया एक वाटर हाइसिंथ जो जलकुंभी कहते हैं उसके ऊपर काम होगा, जो जूट का ऊपर है वो लोग को लेगा, इंटरेस्ट है तो आप आइएगा।
तब मैं गुवाहाटी जाने का लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो किसी से मदद लेके मैं गुवाहाटी पहुंची। तो गुवाहाटी जाकर उधर बोला नहीं अब तो फ्लॉप हो गया, नहीं लेना है आपको, काम नहीं कर, पूरा 25 था, 25 हो गया। तो मैंने मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग सीखना चाहिए, खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों के पास जो सीखना है वही चाहिए। तो किसी करके नेटवी का चंद्रकांत दास सर, असीम कुमार दास सर ने हमको मौका दिया। तब जाके 2007-8 में ये वाटर हाइसिन प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में पहली बार असम में गुवाहाटी का खेती में ये प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग हुआ। उसमें 25 डेज हम ट्रेनिंग किया। तो घर में जाके सब बैठ गया। तो मैंने सुबह उठा, घर में जाके सब आर्टिजन तो सीख के बैठ गया। तो तालाब पे गया, उधर जो हाइसिन काटिंग कर रहा था, सब बोला हमको पागल हो गया, ये क्या कर रहा है, ये तो पागल जैसा लग रहा है, कुछ नहीं होगा इसके लिए। फिर भी मैंने ये काम किया। तो एक बार नेटपी से आया विजिट करने, तो देखा हमारा घर में जो हम 25 डेज हुआ ट्रेनिंग लिया, कुछ भी सामान अपना आइडिया से बनाया वो लोग खुश हुआ। इसका फिर और एक ट्रेनिंग देने के लिए मौका दिया हमको। बाद में वहाँ गया तो थाईलैंड का एक्सपर्ट आया, उधर से सीख के धीरे धीरे नेटपी हम लोग को नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस जस्ट हेल्प किया। और तब तो हमारा पास ऐसे था, इस लाइन खाने के भी पैसा नहीं था, दिन खाया तो रात नहीं खाया, रात नहीं तो दिन ऐसे। फिर भी ये काम के आने के बाद अब तो और ABC तो अब हरी हूँ, जो हम लोग को ये मौका दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, और ये प्लेटफॉर्म मैं अच्छा काम के लिए यूज़ करूँगी। अभी मैं ऐसा चल रहा है, मेरे इस काम से मेरा फैमिली भी चल रहा है, मेरे फैमिली को भी खड़ा किया, और वो लोग को भी ये अभी इसी से चला। मेरे 7 और 20-30 चलता है। नॉर्थ ईस्ट में पहली आर्टिजन मैं हूँ जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा ट्रेनिंग मैंने किया। अभी ऑल ओवर इंडिया में कर रहा हूँ। अभी धीरे मुझे इसके काम के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी मिला, रिसेंट हमको इंडियन फैशन डिजाइनर अवार्ड भी मिला। और अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, और साथ में और बहुत सारे चल रहा है मेरे। मैं भी खुद इसमें आत्मनिर्भरशील हूँ, और मेरे साथ भी और 10-15 जोड़ा है जो ये काम ऐसा है 10 दिन में जो सीख लेगा कुछ तो इनकम सोर्स आ जाएगा। वो लोग सिर्फ 10 डेज वो टेक्निक अपना धीरे ध्यान सीखेगा, उसको 500 मिनिमम 500 मंथली इनकम आएगा। धीरे धीरे अभी तो नॉर्थ ईस्ट में एक आर्टिजन जिसका काम नहीं था, घर के काम करके महीने में 20, 50, 30,000 ऐसे इनकम कर रहा है, 5,000 से स्टार्ट करके। अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत पीछे है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत जितना हो सके मैं नेट पे हम लोग को मार्केट वगैरह सब कुछ नेट पे हम लोग को दे रहा है, आगे भी देगा, जस्ट हेल्प किया। और नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर आर्टिजन गांव में है, ये हाइसिन के ऊपर काम कर रहा है। आप लोगों को आशीर्वाद है तो हमारा गांव को भी हम और आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग को एजेंसी और ABCD मौका मिलेगा तो इस प्लेटफॉर्म को हम बहुत आगे ले जा सकेंगे हमारा गाँव। ये आप लोगों से धन्यवाद। आप लोग कितने ऐसे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कृपया हाथ उठा के मुझे बताइए, आप लोगों ने कितने लोग वाटर हाइकिंग देखा है? ये तो बहुत अच्छा, ज्यादातर लोग वाटर हाइकिंग देखे हैं। ये एक नया क्राफ्ट है, ये एक बिल्कुल नया क्राफ्ट है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जो टेराकोटा में जैसे सेल बीच में काफी कम हो गया था, उसका रीजन ये था क्या, हमारी इंडियन मेंटालिटी जो है, जब हम टेराकोटा खरीदने जाते हैं, कुल्हाड़ खरीदने जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे भाई तो मिट्टी का बना हुआ है, इसमें क्या रखा है जो कि आप इतना इसका कीमत इतना रखे हो, कम करो। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी जो आज टेराकोटा आर्टिजन को मिट्टी नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मिट्टी का नहीं मिलना। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन ये है। अब वाटर हाइसिंथ पे आता हूं। वाटर हाइसिंथ अभी आज के डेट में ऐसा क्राफ्ट है, रॉ मटेरियल है वाटर हाइसिंथ, जो कि जैसे पहले टेराकोटा के लिए मिट्टी फ्री में मिलता था, आप नदी से तालाब से मिट्टी जो है आप ले आते थे, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। वही स्थिति आज वाटर हाइसिंथ का क्राफ्ट का है, और ये बिल्कुल नया क्राफ्ट है।
ये मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये धन्यवाद के पात्र हैं जो ये असम में इस क्राफ्ट को बनाने का काम शुरू हुआ है और उसके बाद मणिपुर गया है। मैं काफ़ी कोशिश किया हूँ, जो बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, जहाँ कहीं भी पानी है, wherever there is a pond, there is a stagnated water has been developed. And the problem is, जिस तालाब में जिस जगह वाटर हायसिंथ होता है उस तालाब में मछली भी नहीं होता है, फिश भी नहीं होता है, बिकॉज ये पानी के पूरे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप वाटर हायसिंथ पे काम करते हैं तो आज नहीं, शायद अगले कई सालों तक आपको फ्री में रॉ मटेरियल मिल सकता है, बिकॉज शायद जिसका तालाब है वो आपको पैसा दे, भाई ये जरा वाटर हायसिंथ यहाँ से ले जाओ, क्योंकि जब तक वाटर हायसिंथ नहीं निकलेगा तब तक उसका तालाब जो है किसी काम का नहीं है। और इसको बनाने के लिए जो मशीनरी की जरूरत है, 10,000 रुपया से कम कीमत में वो मशीन तैयार हो जाती है। वाटर हायसिंथ निकालिए, उसको ड्राई कीजिए और ड्राई करके फिर जो है उसको फ्लैटनिंग किया जाता है और फिर फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। शायद ही आपको दिल्ली में कहीं मिले, देखने को मिले, और बहुत ही कम कीमत पे आप ले सकते हैं। मैं अपने ऑफिस में मंगा के रखा हूँ वाटर हायसिंथ का जितना भी प्रोडक्ट्स अभी तक डेवलप हुआ है, जो भी मेरे पास आते हैं मैं उनको दिखाता हूँ, देखो भाई ये क्राफ्ट है। ट्रेनिंग बहुत अधिक नहीं अभी शुरू हम लोग किए हैं। उसका रीजन क्या है, जो आजकल कोई भी ट्रेनिंग NSQF कंप्लाइंट होना चाहिए। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में जब तक कंप्लाइंट नहीं होगा आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। तब हम लोगों ने वाटर हायसिंथ में इसको नेचुरल फाइबर में इसको डाले हैं और नेचुरल फाइबर का जो NSQF कंप्लाइंट कोर्सेज है वो ट्रेनिंग शुरू किए हुए हैं। तो जो भी यहाँ पर में है, आपको वाटर हायसिंथ जहाँ भी दिखाई पड़े, आप अगर लोग तैयार होते हैं उसमें क्राफ्ट में सीखने में, आपको सुन के ताजुब लगेगा। जो मैं असम के आर्टिजन्स को, इन लोगों को बोला बिहार जाके ट्रेनिंग दे दो, वहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन बिहार का नाम ऐसा बदनाम है। बोला नहीं, कोई भी बिहार तो नहीं जाएंगे। हम बोले भाई दिल्ली आकर के ट्रेनिंग दे दो तुम, हम क्राफ्ट म्यूजियम में हम ट्रेनिंग की बिहार से लोगों को बुला लेते हैं जो सीखेंगे काम, और यहाँ आकर के ट्रेनिंग दो। तो ये वाटर हायसिंथ इस तरह का चीज है, नेचुरल है, 100% नेचुरल है, पानी में है, एक तरह से हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, और उस वेस्ट मटेरियल से हम काफी अच्छा क्राफ्ट बनाते हैं, काफी अच्छा टोकरी डेकोरेशन का सामान इन लोगों ने बनाया है। तो अपने आप उगने वाला ये जो जंगली पौधा है उसको आपने इतनी सुंदर शिल्प कला प्रदान की है कि मुझे लगता है कि लोग तो खुश है ही आपसे, वाटर हायसिंथ भी बहुत खुश है आपसे। तो इंशाल्लाह आपकी ये जर्नी कंटिन्यू रहे एंड यू रीच हायर हाइट्स। आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू फिट्टूराम जी। ये क्राफ्ट के सफर में आपका और मेरा सफर काफी सिमिलर रहा है। जी जी। तो जहाँ पे मैं गई दिल्ली से उड़ीसा क्राफ्ट से जुड़ने के लिए, तो वहीं पे फिट्टूराम जी गए छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड क्राफ्ट की एक नई पहचान खोजने के लिए, है ना? जी मैम। तो आई होप आपकी जर्नी विल इंस्पायर मोर आसाम के बुनकार को बिहार लेके जाने के लिए। तो थोड़ा बताइए फिट्टूराम जी, आपको किसने प्रेरित किया छत्तीसगढ़ से उठ के उत्तराखंड शिफ्ट होने के लिए, और नेटल जैसी रेयर और मुश्किल फाइबर्स के साथ आपने किस प्रकार के आधुनिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और भी जो फाइबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। सबसे पहले तो मैं IGNC को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा एक सपना था कि मैं इस काम को लेकर एक दिन दिल्ली जाऊंगा, और आज IGNC मुझे इस दिल्ली के मंच पे बिठा दिया। मतलब उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कहानी बताने जा रहा हूँ, कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये कहानी के रूप में मतलब सामने आएगी, पर मैं आज देख रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा एक मतलब इशू बन के सामने आ गया है। मैं सबसे पहले उत्तराखंड गया तो मैं घूमने के पर्पज से गया था, पर वहाँ देखा कि सिल्क के क्राफ्ट को लोग सब फेंक रहे हैं, ये काम का नहीं है। तो बताया भाई इसके कपड़े बनेंगे, तो बना के दिखा दो। तो बना के दिखाए तो बोले हमारी हेल्प कर दो, 2 महीने 4 महीने, बोले नहीं करेंगे। पर उन लोगों ने हम लोग को मना लिया तो काम किए। फिर इसके बाद 2006 में बेम्बो बोर्ड में मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में गया
पीपल कोटी पहाड़ में। तो हेम्प के रेशे से मैंने 6 सैंपल बनाए। तो देखे तो बोले कि हाँ, तो ये आदमी कमाल कर देगा, जो अभी तक उत्तराखंड वालों ने नहीं किया। ये 5 दिन में 6 सैंपल बना दिया। तो उन्होंने कहा कि आप जब भी जाओगे नौकरी छोड़ के तो मुझे आप मतलब बोल के जाना। मैं नहीं बोला, पर बुलाए मुझे वो, और मैं पीपल कोटी में 8 महीने काम किया, पर काम वहाँ नहीं हुआ कुछ भी, डेमो बोर्ड के माध्यम से। तो सर ने बोला कि आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, आपको कुछ नया करके दिखाओ पृथ्वीराम जी। तो मैंने कहा सर मुझे आप फ्री कर दो किसी से, मैं बंधन में हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप फ्री हो निकल जाओ। 2007 जनवरी में मैं मंगरौली में काम शुरू किया। तो मैं गांव गांव गया, बहुत सर्वे किया, पर मेरे पक्ष में कोई नहीं आया। लोग बोलते थे इससे कुछ नहीं हो सकता और आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं। मैंने कहा जिसकी रस्सी बन सकती है तो उसका यान भी बन सकता है। मैंने उस पर मतलब अपने आप को मतलब झोंक दिया। और मैं कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ मेरे बच्चे छत्तीसगढ़, कहाँ उत्तराखंड में अकेले। तो घर में लोगों ने कहा कि आप करना चाहते हो तो करो, हम घर संभालेंगे जैसा भी है। तो मैं अपने आप को उसमें पूरा झोंकने के बाद मैंने कहा कि मुझे आप 6 महीने का समय दो, अधिक काम नहीं होगा तो मेरे साथ आप लोग काम मत करना। तो भोटिया कम्युनिटी है, मैं उसके साथ काम करना शुरू किया। तो काम में तो बहुत दिक्कतें आई, मतलब एक चैलेंज था कि इसको लोग बोल रहे हैं नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो 2 साल के अंदर 7 से लेकर 9 तक में कुछ प्रोडक्ट निकल के आए। तो देहरादून में सेमिनार हुआ, तो वहाँ लोगों ने कपड़े को सराहा कि भाई हाँ कोई है मत छत्तीसगढ़ का आदमी जो इसको कर रहा है। बाद में धीरे 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 करके नेटल के ऊपर हमने काम किया। इसका काम नेपाल में भी होता है, पर हमारे जो यान हैं वो कुछ अलग हैं, उनके यान अलग हैं। वो उसको कार्ड नहीं करते, हमने उसको प्रोसेसिंग करके कार्ड किया। कार्ड करने के बाद यान बनाए जो बागेश्वरी चरखा है। तो अभी हम मतलब यानी उसी में काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, अभी मैकेनाइज नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ ABCD में आए और कुछ कार्य किया, लोगों ने देखा समझा, अब यहाँ तक कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप नेपाल का भी नेटल होता है यस और उत्तराखंड में भी नेटल होता है। जी मैम। आप थोड़ा हमें परिचित करवाइए, दोनों में क्या फर्क है, और स्पेशली नेटल के प्लांट में फर्क है, उसकी कला में फर्क है, कैसे धागा बनता है उसमें फर्क है, क्वालिटी में फर्क है, प्रोडक्ट में या फर्क है। आप थोड़ा हमें परिचित करवाइए। जी मैम। क्या है, जो मतलब हार्डवुड के मतलब फाइबर होते हैं, चाहे वो उत्तराखंड का हो या नेपाल का हो, तो उसमें फाइबर ज्यादा होता है। हाँ, और जो नीचे में होता है जहाँ पे मतलब ठंड कम पड़ती है, तो वहाँ के फाइबर हाथ से कम होते हैं। तो इसलिए मतलब हार्डवुड का जो होता है उसमें ज़्यादा फाइबर मिलता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो नेपाल में ज़्यादा ठंडी पड़ती है यहाँ से, तो वहाँ के फाइबर मतलब मजबूत, fine हाँ quality। साइन होता है। दूसरी चीज़, नेपाल वाले उसको दांत से छिल के बनाते हैं। तो वहाँ के दांत कई लोगों के खराब हो गए, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं है। पर हमने उत्तराखंड में काम करना शुरू किया तो क्या करते थे, पहले उसको राख से उबालते थे लोग, और उबाल के खाली उसको बटते थे। लेकिन हमने वो प्रक्रिया मतलब इसने अपनाया कि कब तक हम राख में मतलब दबे रहेंगे, तो उसको हमने डिगम कर दिया, और डिगम करके फिर उसके कार्ड करा के फिर यान बनाए। अपने आप में फाइन और उसकी जितनी भी जी, हाँ। मैल था वो जी। साफ हो गया और सॉफ्ट भी हो गया। जी जी। एक और चीज जो बहुत दिलचस्प मुझे लगती है, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए। छत्तीसगढ़ में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, पेड़ पौधे तो दोनों तरफ है, उत्तराखंड में भी और छत्तीसगढ़ में, पर छत्तीसगढ़ में थोड़ा गर्म है आपका वातावरण, और उत्तराखंड में तो कभी कभार बर्फ भी पड़ती है। जी। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके वहां पे बसने का, खान पीन, रहन सहन? मैम ऐसा है कि यदि अगर कोई आदमी कुछ चीज करने के लिए सोच ले ना, तो कोई उसके सामने रोड़ा नहीं जा सकता। ये मेरा मत जीवन का अनुभव है। कोई किसी को रोक नहीं सकता। नहीं तो छत्तीसगढ़ का आदमी उत्तराखंड में 6 महीने नहीं टिकता। मैं कम से कम 10 लोगों को ले गया वहां, पर मेरे साथ काम करने के लिए कोई एग्री नहीं हुआ। पर मुझे ये काम करने के लिए किसी बच्चे ने मतलब मजबूर किया। मैंने आप पर्सन बताया था, मैं जा रहा था सूपी, तो सॉन्ग के ऊपर एक गांव पड़ता है। तो छोटा सा बच्चा था, मैं 2 साल के करीब का, तो वो प्लेट में लेके चावल खा रहा था। उससे कपड़े नहीं थे बदन पे उसके। तो मुझे लगा कि यार इतने ठंड में बच्चा कैसे ऐसे खुला बदन है। तो मैं एक दूसरे से पता किया, तो बोले कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।
तो उस बच्चे को मुझे देख के लगा कि यार यहाँ इस तरह गरीबी है, तो क्यों ना हम भी इनकी मदद करने के लिए सामने आए, कुछ लोगों को रोजगार दे पाएंगे। तो मैंने उसको रोजगार के पर्पज से डेवलप किया है। मैंने अपने मतलब उसके लिए नहीं, क्योंकि जो चीज पे हम काम कर रहे हैं वो निःशुल्क मिल रहा है। पहाड़ों पे मतलब ऐसे होता है, राइजूम से फिर निकल जाता है, फिर काटो फिर निकल जाता है, तो बेकार के मतलब जैसे कोई शुल्क नहीं है। तो हमने कहा कि बेकार की चीजों को काम में लाया जाए। हाँ, तो ये सोच थी हमारी। ये इस क्राफ्ट नेटल यार्न क्राफ्ट में कितने लोग हैं, कितने आर्टिजन या वीवर? सर मैं बेम्बू बोर्ड में काम कर रहा था, तो कम से कम मेरे साथ 60 महिलाएं थी, 60। अब अभी कितना है ये मुझे पता नहीं है, पर और एक चीज बता दूं कि इस कपड़े के डिमांड मेरे पास अभी आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग मुझे फोन करते हैं कि भाई आपके पास कपड़े हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ रहता हूँ सर, मैं नौकरी छोड़ दी, पर इस पर कुछ काम किया जा सकता है, आगे लोग यदि करना चाहें तो। मेरा मानना है 60 आदमी आप बोल रहे हैं? 60 आदमी इस पे हाँ, काम 60 करते हैं। आदमी महिलाएं काम जो करें भी मेरे साथ। बनाते हैं वो बिक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक भी कपड़े नहीं है बोर्ड में, पहले नहीं थे, अभी का पता नहीं। तो ये सब देखिए, आज जो वर्ल्ड है, जो ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, तो मैं कहता हूँ जो अभी फ्यूचर जो है क्राफ्ट का, वीव का, बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर इज ब्राइट फॉर द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। फ्यूचर बिलोंग्स टू हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। सस्टेनेबिलिटी जो है, जो हमारे जितने भी ट्रेडिशंस हैं, रिलीजियस ट्रेडिशन हो, कल्चरल ट्रेडिशन हो, सोशल ट्रेडिशंस हो, ऑल ट्रेडिशंस विदाउट हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स के बिना अधूरा रहता है। तो ये और सबसे ज़्यादा जो जोर अभी दिया जा रहा है ना सस्टेनेबिलिटी पर में, यूएनओ भी और सब सारे गवर्नमेंट भी, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। तो सारे क्राफ्ट, जैसे आपने सुना इनसे, जो ये क्राफ्ट जो है सस्टेनेबल है, रॉ मटेरियल नेचुरल है, हैंड से ये पूरा काम करते हैं। मैं जाना चाहूंगी वेंकटेश जी के पास। नमस्कार। नमस्ते। आप आंध्रा की ट्रेडिशनल लेदर शैडो पपेट्री क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम थोलू बोमलता के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है थोलू बोमलता 200 साल पुरानी शिल्प है। और आपने ये भी बताया कि पिछले 8 सालों से आप डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडियो मोया। ये किस तरीके का कोलैबोरेशन रहा है और आपकी क्राफ्ट पर क्या प्रभाव पड़ा है, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। मैडम सबको नमस्कार है। मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया IGNC को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू हमारा डिजाइनर रश्मि सिंह को, मेरे को इतना दूर लेके आया। ये क्राफ्ट है 200 इयर्स ओल्ड क्राफ्ट है, शिवाजी महाराज से तब से चल रहा है। ओनली तभी चलता था, पपेट शो एक ही चलता था। हमारा परिवार लोग सभी गांव जाके उधर ही पपेट शो खेल के, उधर ही खा के, उधर ही पी के, उधर ही सो के, फिर नेक्स्ट डे और एक गांव जाके, ऐसे लोग ऐसे ही चलता रहता था, ऐसे ही काम करता था। ये 1919 में एक क्राफ्ट को पहचान करके गवर्नमेंट एक रूप दिया है, इसको कुछ आगे लेके जाना है, अच्छा कला है बोल के। तभी 1992 पे ही 1990 से 1992 तक इसको काम दे के इनको और अलग कंट्रीज को भी तभी भी भेजा है पपेट शो करने के लिए। उसको पपेट शो एक ही भी नहीं होता, इनको जीवनोत्पाद कुछ देना है, इससे इन लोग बचना है। सभी लोग पपेट शो नहीं करता है ना, इससे कुछ घर का डिजाइन अच्छा लगता है बोल के लैम्प, पपेट्स ऐसे इंडिविजुअल घर में डेकोरेटिव आइटम बनाया है। आपने पपेट शो से डाइवर्सिफाई किया, एक नई प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में जो ज्यादा होमवेयर और यूटिलिटी प्रोडक्ट्स की तरफ आपने इनोवेशन का काम किया। तब से यही काम चल रहा है, लैम्प चल रहा है तभी, तब से फिर हमारा घर पे पापा लोग सब लोग यही काम कर रहा। हम भी वो देख देख के, हमको भी कब सीखा हमको भी पता नहीं है, देख देख के वो मैं 8 साल से ही मैं काम करने का शुरू किया, तो पढ़ाई भी कर रहा था, काम भी करने का शुरू किया। पूछने वाली थी, पढ़ाई लिखाई की साथ में? हाँ, पढ़ाई तो डिग्री डिसकंटिन्यू किया है। तभी हमारा क्राफ्ट करने के लिए तो मेरे को भी घर में देख देख के बोर लगता था, ये काम क्या कर रहे हैं, मेरे को भी बोर लगता था, डेली यही काम कर रहा है। मैं भी अलग कुछ काम जाएगा तो बाहर जाएगा तो अच्छा रहता है ना, घूमने के लिए और काम करने के लिए।
बोल के मैं इंटर डिस्कंटिन्यू होने के 1-2 साल और जगह पे काम किया, और एक कंपनी में अलग काम किया। फिर घर आया, घर में रुका था एक दिन, पापा लोग हमारे साथ नहीं हो रहे हैं काम करने के लिए, हमको पढ़ाई नहीं आता, बाहर जाने की मुश्किल है, उनको पता नहीं है कैसे किधर जाना है। बोले तब से मैं भी घर पे काम कर रहा था, ठीक है मैं भी कर दूंगा बोल के घर से कंटिन्यू काम कर रहा था। तभी अचानक एक दिन एक स्टूडियो मोए से मैडम आया है, तभी पता उससे तब से 2014 से उनसे टाइप हुआ है, उससे मिलके काम कर रहा है। तो थोड़ा बताइए कि किस तरीके का कोलैबोरेशन रहा आपका स्टूडियो मोया के साथ, उनके साथ क्या क्या चीज़ें आपने नए प्रकार से किया, पुराने को एक नए रूप में बाहर मार्केट में आप कैसे लेके आए। आप आंध्रा से हैं, जो आपकी डिज़ाइनर है वो आंध्रा से नहीं है, तो एक आपका वार्तालाप किस तरीके का, एक्सचेंज किस तरीके का हुआ जब दो डिज़ाइनर्स, आप डिज़ाइनर है वो डिज़ाइनर है, आप दोनों जब मिले तो किस तरीके का बम फटा, थोड़ा बताइए। नहीं ऐसे नहीं, वो तो मैं उन लोग का लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, मेरे पापा को घर में परिवार लोग को उतना हिंदी नहीं आता, ओनली हमारा लोकल लैंग्वेज आता है, उनका समझने का मुश्किल है। तभी उनको कुछ नया चीज निकालना, मतलब डिजाइनर को लिए उनका भाषा समझना है मेन, उनका भाषा भी समझना है, हमको भी थोड़ा सा दिमाग चाहिए, वो लोग क्या बता रहे हैं हम भी थोड़ा उसकी जोड़ पाए तो कितना अच्छा सुंदर निकलता है। उससे वही डिजाइनर कुछ बोलता था, हम भी थोड़ा सोच के नया चीज निकाल रहा था, ऐसे नया चीज निकाल के अच्छा प्रोडक्ट भी बनाए है, मार्केट में भी बहुत उसको रिस्पॉन्स आ रहा है नया डिजाइन बोल के। तो किस तरीके के नए डिजाइन की, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए जो इजाद हुए। प्रोडक्ट से नॉर्मल लैम्प शेड्स बनता है, ये लोग नॉर्मल पहले चलता था नॉर्मल एक बेड लैम्प, नहीं तो एक पपेट, एक वॉल हैंगिंग। अभी नया बन रहा है, वॉल पेंटिंग्स बन रहा है, नया ड्राइंग्स बन रहा है, डिजाइन्स नया बन रहा है। नॉर्मल पहले का ओनली एक पिकाक आता था, नहीं तो स्टोरी रामायण का आता था, ऐसे भगवान का एक ही डालता था। ऐसे नया चीज का लोग का पसंद क्या है उनको पता नहीं चलता था ना, डिजाइनर लोग से ही पता चला हमको लोग को अभी क्या पसंद कर रहा है। तो मार्केट में किस तरीके की पसंद नापसंद चल रही है, वो आपको एक आइडिया समझ आया डिजाइनर के साथ कोलैबोरेट करने से। हाँ, बहुत अच्छा। जब आपने पढ़ाई लिखाई वाली बात की तो मुझे एक ख्याल आया कि जब when we talk about craft pedagogy या craft education, it's very interesting कि हम crafts people, artisans, जो गांव में डिजाइनर्स हैं आप जैसे, when we talk about are you educated or not, आप बीए पास है या आपने पीएचडी की है, मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने डबल एमए पास किया, एक तो अपनी कला में और एक स्कूल जाके। तो मुझे लगता है कि हमें एक जब एजुकेशन के दायरे में जब बातचीत चलती है तो मुझे लगता है आपने बचपन से ही एक अपने तरीके से अपनी कला में बहुत ही अच्छी एजुकेशन पाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बना रहे हैं पपेट, दूसरे स्टेट में भी बनता है पपेट? नहीं, हम मेरा क्वेश्चन ये है, जो पपेट उड़ीसा में बनता है, जो पपेट राजस्थान में बनता है, जो पपेट केरला में बनता है, क्या आपने उनका स्टडी किया है? आपके पपेट से आप अपने वर्क में उनके काम में से क्या सीख सकते हैं? क्योंकि आपसे कोई कस्टमर पूछेगा कि भाई आपसे हम क्यों लें, उनसे क्यों नहीं लें, तो आपका काम किस तरह दूसरे लोग जो पपेट बनाते हैं उससे अंतर है, क्या डिफरेंस है? हम तो कस्टमाइजेशन करेगा, उनको क्या चाहिए एग्जैक्ट वो उनका दिमाग से प्लान देगा तो वही बना पाएगा, नहीं तो पुराना लोग कैसे नहीं बन पाएगा ना। वो लोग भी उनका केरला में बन रहा है, राजस्थान में बन रहा है, वो लोग उधर ही रुक गया, ओनली पपेट एक ही बन रहा है, पपेट शो तक ही है, आगे नहीं ले पर जाएगा। वो घर में डिजाइन के लिए डेकोरेट आइटम कुछ नहीं बन पाया वो लोग। ठीक है, आपने अच्छा काम किया है, आप डेकोरेशन में गए, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर जैसे पहले केवल जो है आप रामायण महाभारत जो हमारे रिलीजियस चीज़ों को ही लेके सारा चीज़ आपका है,
क्योंकि आज का जनरेशन जो है और या वर्ल्ड मार्केट जो है, हाँ। अगर हम वर्ल्ड मार्केट में केवल अपने हिंदू मैथोलॉजी से जाएंगे तो वो चीजें नहीं चलेगी। हाँ, नहीं। अगर आप चाहते हैं जो कि अपने देश में भी डिफरेंट कम्युनिटी भी है, इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले आपके पपेट नहीं लेंगे, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जैन धर्म को मानने वाले हाँ। हैं, तो जो उनको पसंद है सोचना तो आपको पड़ेगा। हाँ। जो केवल ट्रेडिशनल पे आप अगर जाएंगे, यही तो डायनेमिक है जो कि कंटिन्यूअस उसमें चेंजेज आते हैं समय हाँ। के साथ। जो है आपने केवल अपने उस पपेट को डेकोरेटिव वर्क्स में शुरू कर दिया, लेकिन क्या दूसरे और सेगमेंट को आप अट्रैक्ट कर सकें, उस पर कुछ सोचे हैं? हाँ सर, अभी पपेट है कि नहीं बन पाया उसमें। पहले पपेट ओनली ड्राइंग करता था भगवान का, अभी वही लैम्प्स बन रहा है और लैम्प्स में अभी लोग का क्या पसंद है वो ड्राइंग करके दे रहा है डायरेक्ट। आपकी जो रिसर्च है और आपका जो काम है और इनोवेशन है, हाँ। वो एक आपका ऑलरेडी यू आर इन दैट जर्नी, आप सफर में हैं, आप धीरे धीरे उसको डेवलप कर रहे हैं। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक। अब कुछ चर्चा हो जाए मार्केटिंग और क्राफ्ट अवेयरनेस को लेके, और यहाँ पर मैं ये सवाल आप सबके सामने रखना चाहूँगी। आप सब ने इनोवेशन के जरिए नए प्रोडक्ट्स इजाद किए, पर ये प्रोडक्ट्स मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाएगा और कितना ज़रूरी है कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। जैसे कि रीता जी, वाटर हाइसिंथ से बुने हुए ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल नए हैं, और ये नए प्रोडक्ट्स मार्केट के लिए भी बहुत नए हैं, तो आपने लोगों को इस नए कला के बारे में कैसे परिचित किया? मैं ये कला पहले जब सीखा था, मार्केट में बहुत प्रॉब्लम होगा, कोई कहता है इसके फंगास हो जाएगा, कोई मार्केट सेल नहीं हो रहा था, तो हम लोग दिल्ली में प्रगति मैदान नेट की तरफ से आया था, उधर डेमो दिखाया था, सबको कॉन्फिडेंस दिया था, जब लीजिए, यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा हम अगला साल आएंगे, अगला आप रिटर्न दीजिए, हम ले लेंगे, कुछ भी टूट जाएगा तो हम रिटर्न लेके आप दे देंगे, पैसा रिटर्न मिल जाए। फिर भी कोई खरीदा नहीं तो एक कोई खरीदा, वो लोग खरीद के ले गया। जब फिर अगला साल आया तो वो लोग को बोला कि हमको और कस्टमर ज़्यादा ला के दिया, बहुत अच्छा। तो हम बोला ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे फंगास पड़ जाए, पानी पड़ जाएगा, नहीं, ये सब हम लोग ट्रीटमेंट दे के किया, कुछ नहीं होगा। तो हम नेटफी में की तरफ से जब प्रगति मैदान में है, हमें 15 डेज उधर डेमो करके दिया, कैसे बनाते हैं, कैसे काटिंग करता है, कैसे सुखाते हैं, ये सब वो लोग को बता के ऐसे चला। हम लोग को 5 साल लग गया मार्केट लेने में, तो धीरे धीरे अभी तो मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर ही ऑर्डर है। आर्टिजन पावर हम लोग को थोड़ा कम हो गया आर्टिजन, और अभी घर में बैठ के ही सब ऑर्डर आती है, इतना ऑर्डर आती है हम लोग फिलअप कर नहीं पाती हूँ, और बहुत इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है, ये 9-10 साल तक कुछ नहीं होगा, 7-8 तो आराम से चल जाएगा, और जितना यूज़ होगा इसको ब्राइटनेस इतना ज़्यादा होता है, और सब कुछ इसमें से सब कुछ बनते हैं, कुछ भी नहीं। हम भी इसमें से जैकेट बनाया, हमारा CM का गिफ्ट किया था जैकेट बनाया था, तो और मास्क भी बनाया, ये सब बहुत। अभी तो किसी को बोलना नहीं पड़ता, ये हाइसिन का प्रोडक्ट है, खुद खरीद स्टॉल दे के खरीद के ले जाता है, खुद हमको कांटेक्ट करता है कैसे कैसे मिलेगा। अभी ऑल ओवर इंडिया में ये ट्रेनिंग चल रहा है, हम दे रहा हूँ, हमारा साथ भी और आर्टिजन है वो लोग भी दे रहा है साथ में, और बहुत अभी तो इजी हो गया बहुत कम समय में हम लोग बहुत दूर आगे बढ़ गया, पहले तो बहुत तकलीफ होता था, अभी नहीं। अच्छा लगा आपको ये सुन के कि अब आप बोल रहे हैं आगे बढ़ गए। हाँ, और तो मार्केटिंग। आपका अधिकतर एग्जीबिशंस माध्यम है मार्केटिंग का? हाँ ना, पहले तो एग्जीबिशन माध्यम से हुआ था, अभी डायरेक्ट आ रहा है, अब डायरेक्ट भी आ रहे हैं हाँ। ऑर्डर्स, तो इंटरनेशनल मार्केट भी आ रहा है। अरे वाह, बहुत ही अच्छा। ये तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल हाँ। स्टोरी है। फिर तो राम जी, आप किस मोड पर है मार्केटिंग को लेके? आपकी क्या चैलेंजेस है ये भी आप बताइएगा मार्केटिंग को लेके, और एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपकी क्राफ्ट नेटल की। जी मैम, क्या है, अभी हमारे प्रोडक्ट में कुछ % कमियां हैं,
हमने काम करते करते हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, नेचुरल फाइबर है, कहीं मतलब इसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुछ इसमें और बाकी है रह गए हैं, पर कपड़े बिक रहे हैं। और अभी इसकी डिमांड भी है। एक राजीव रावत हैं रानी खेत के, वो दिल्ली रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको महीने में 200 मीटर कपड़े दो, आप रेगुलरिटी दो हमें। आदि अगर आप 1 माह बंद कर देंगे तो अपना बायर जो है फिर वो मतलब बंद कर देगा। तो समस्या हमारी यहाँ पर खड़ी हुई है कि हम मास प्रोड्यूस कैसे करें इसको। तो मैं समझी नहीं, तो समस्या आपकी कहाँ है? रॉ मटेरियल में समस्या है, क्वालिटी में समस्या है? क्योंकि ऑर्डर आपके हाथ में है, वो बोल रहे हैं आप रेगुलर हमें मीटरेज दीजिए, तो समस्या कहाँ पे पड़ी? हम अभी नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी सरकारी तंत्र है, वो अपने हिसाब से चलती है, कोई किसी का डिमांड नहीं देखती। अच्छा, उसको डिमांड में लाएगा भी तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो जो गांव की महिलाओं को हमने सिखाए वो इस पे इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं कि उस काम को आगे लेके जाएं। हमने तो अपना काम कर दिया, रोजगार ला दिया, डेवलपमेंट कर सब कुछ कर दिया, पर उसको लेके जाने वाला छत्तीसगढ़ का लेके नहीं जाएगा, उसको जाएगा तो उत्तराखंड का ही लेके जाएगा, क्योंकि मतलब उत्तराखंड का प्रोडक्ट है वो। तो क्या आपको लगता है कि जो उत्तराखंड की महिलाओं को आपने ट्रेन किया है जी, और उनको सामने दिख रहा है कि एक ऑर्डर खड़ा है और उससे उनको आमदनी मिलेगी, रोजगार तो मिलेगा, और कोई भी रोजगार को ठुकराना तो चाहता नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि ये महिलाएं वो ऑर्डर को फुलफिल करना नहीं चाह रही है? क्या रोजगार में आपत्ति आ रही है, या आपको लगता है एक खाली एक माइंडसेट है, या एक सोशल डिलेमा है कि औरतों को काम नहीं किया जा रहा? उस वातावरण में उत्तराखंड में जिस गांव में आप काम करते हैं उसका थोड़ा आप बताइए कि क्या समस्या हो सकती है। इसका 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि उनको सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के वो काम महिलाएं नहीं कर पा रही हैं। दूसरा है कि घरेलू महिलाएं हैं, तो वो मतलब आपके हिसाब से काम नहीं करेंगी, वो अपने हिसाब से करेंगी, तो उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ाने के बाद वो काम पूरा हो जाएगा, पर उनको सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के वो अपना बिजनेस नहीं कर सकते। तो सपोर्ट की जरूरत है, एक वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। बिल्कुल। कुछ स्कीम्स अगर आ सके आपके गांव में जो उन महिलाओं को सपोर्ट कर सके, जहाँ पे या तो किसी तरीके का उनको वर्किंग कैपिटल मिल सके, या रॉ मटेरियल सब्सिडी मिल सके, या इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी में सपोर्ट मिल सके, तो आपको लगता है कि एक मुकाम तक वो काम पहुंच सकता है और वहां से वो महिलाएं आगे लेके जा सकती है, एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है, मैं इतना जानता हूँ इस बारे में। ठीक है, तो ये आप सबके लिए है, स्पेशली जो यहाँ पे अगर सरकार, CSR, NGOs, डिजाइनर्स, हम सबके लिए ये है सूचना कि नेटल फाइबर के साथ अगर कोई दिलचस्पी रखता है काम करने के लिए, तो एक पोटेंशियल क्लस्टर आपको यहीं पे मिला है। बाबू भाई, आप वूल से कॉटन में शिफ्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि इससे आपको पूरे साल की मार्केटिंग करने का फायदा जरूर हुआ होगा, क्योंकि वूल तो सीजनल है और कॉटन ईयर राउंड है इंडिया में, तो आप थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। पहले जो वूल के हम काम करते थे, हैंडस्पन करके, हैंड वेविंग, ये सब तो चला 700 साल से चला रहा था, मगर आजकल क्या धूप की बहुत प्रॉब्लम है हमारे गुजरात में, बहुत ही तापमान बढ़ता जा रहा है, इसीलिए भी इन लोगों ने पहनना भी बंद कर दिया। यही भी एक वजह है, एक फैशन है, एक धूप बहुत है गुजरात में, वो भी 2 वजह है। तो हमने सोचा कि यही तो चलता रहा, मगर हम कुछ नया करें इसमें, कॉटन में भी। तो पहले हमने थोड़ा जो कॉटन वाला कपड़ा था, रफ कॉटन सिंगल प्लाई में शुरू किया था, तो ये थोड़ा बुनाई की लगभग 2 साल, तो वो कपड़ा हमने बेचा, मगर थोड़ी फरियाद आई इसमें कि भाई कपड़ा ठीक नहीं है, आपका थिकनेस ठीक नहीं है, तो हमने थोड़ा ये यान भी चेंज कर दिया। अभी हम 2 प्लाई में कर रहे हैं काम, पहले सिंगल प्लाई में करते थे। और आपने पूछा कि आप उनमें से कॉटन में क्यों आए, इनकी वजह यही है कि थोड़ा जमाना भी फास्ट है। अभी वूल तो ये हाथ से काटना पड़ता है, टाइम लगता है बहुत, और जो ये कॉटन है 2 प्लाई वाला वो मार्केट में मिल रहा है ऑलरेडी, तो जो हमारा काम करने का तरीका है वो भी बदल गया। इस टाइम पे पुराना वाला तरीका था, अब हमने नए तरीके से जो हमारा बात करते हैं हम बाबिन करने का, वो सब अलग तरीका कर दिया हमने, तो इसमें थोड़ा चेंज आया, झड़प वाला काम आया।
थोड़ा काम थोड़ा स्पीडली हो गया सब। इसलिए हमने प्रोडक्शन हाँ, वो सिंगल प्लाई में भी थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि बार बार तार टूट जाना, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता था। और जब हम वीविंग करते हैं, बुनाई करते थे, तो तार टूट जाता है तो इसमें चीरा पड़ता है, जो हमारी लैंग्वेज है गुजरात चीरा बोलते हैं तो इसको। आप मर्सराइज्ड कॉटन इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मर्सराइज बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं, सिंगल कॉटन। सिंगल 2 प्लाई कॉटन यूज करता हूँ। और कॉटन सिल्क हमारा वार्प है जो एक कॉटन का है, और वेफ्ट है वो सिल्क का है। और वेफ्ट में हम कोई भी यान यूज कर सकते हैं। हमने बनाना भी यूज किया है, मटका सिल्क भी यूज किया है, टसर भी यूज किया है, सब तरह का यान हमने, ऊल भी या मरीनो ऊन, देसी ऊन, वो सब हम वेफ्ट में यूज करते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा सेलिंग आइटम कौन सा है, और ये भी बताइए कि किस माध्यम से आप मार्केटिंग करते हैं? आपका मॉडल ज्यादा अधिकतर एग्जीबिशन मॉडल है, B2B है, एक मिक्स्ड मॉडल है, बेस्ट सेलिंग आइटम कौन सा होगा आपका? हाँ, शुरुआत में करूँ तो मैंने 2003 में एक एग्जीबिशन किया था अहमदाबाद में, WSC का एक प्रोग्राम था वहाँ पे, रिवर सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर है अहमदाबाद का। तो इस टाइम किसी को पता नहीं था कि तांगलिया चीज क्या है, 2003 की बात कर रहा हूं मैं। तभी हमारे पास छोटी छोटी चीजें थी। हमने शुरुआत किया नैपकिन से, और जो पंखा आता है हैंड वाला, इनका कवर बनाया ऐसी सब छोटी छोटी चीजें बनाई थी हमने। और थोड़ा सा छोटा मफलर जैसा स्टॉल वो भी बनाया था स्टार्टिंग में। तो थोड़ा संक्षेप रूप में बताइए कि अभी कौन सा आपका सबसे ज्यादा ये बिक कह रहा रहा है? हूँ मैं ये कह रहा हूँ। तो हम मार्केट में गए तो मार्केट में सब लोगों ने बताया कि ये छोटे छोटे चीजें बंद करो, अब इसमें थोड़ा ऊपर आओ, कुर्ता बनाओ, दुपट्टा बनाओ। तो शॉर्ट टाइम में हम साड़ी पे आ गए। तो कस्टमर समय में। फीडबैक आपको लगता है बहुत जरूरी जरूरी है, और सबसे ज्यादा बिकने वाला है तो साड़ी है मेरी, कॉटन सिल्क की। मेरी भी सबसे ज्यादा साड़ियाँ है। सबसे ज्यादा साड़ियाँ कॉटन सिल्क की, और हमारा ट्रेडिशनल मोटिव वही और चलता है, ट्रेडिशनल मोटिव। और ट्रेडिशनल मोटिव। तो इनोवेशन आपने किया है धागे पे, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अधिकतर हम लोग, ये हमारी गलत फहमी रहती है क्राफ्ट में कि इनोवेशन के नाम पे हमें लगता है कि कपड़े के ऊपर डिजाइन क्या प्रदर्शित किया है वो नया होना चाहिए, पर बाबू भाई से ये पता चलता है कि ट्रेडिशनल मोटिव हो, ट्रेडिशनल टेक्निक हो, पर इनोवेशन आप रॉ मटेरियल में भी कीजिए, आप इनोवेशन मार्केटिंग में भी कर सकते हैं। तो एग्जीबिशन मॉडल है आपका अधिकतर। हाँ। वेंकटेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लास्ट सवाल, आपकी किस तरीके के चैलेंजेस है मार्केटिंग को लेके, क्योंकि आपने तो एक जो कला, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपने तो जो उसका मकसद है वो उसी में इनोवेशन कर डाला। पपेट्री को लेके आपने यूटिलिटी प्रोडक्ट्स की तरफ आप गए, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में। तो आपने किस तरीके के आपके मार्केटिंग चैलेंजेस है? मार्केटिंग चैलेंज में मैं फेस किया, मेरा घर में पापा लोग को है ना, उनका मार्केटिंग में तभी मार्केट था, तभी कोई लोग, इनको पढ़ाई नहीं है ना, तभी नहीं जा पाएगा बाहर, तभी बाहर नहीं जा पाएगा। गवर्नमेंट का सपोर्ट दे रहा है, इनको भी पता नहीं चलता था तभी इन लोग अवार्ड कुछ भी नहीं अप्लाई किया, इनको भी नहीं पता है अवार्ड को कैसे अप्लाई करना है, अवार्ड अप्लाई आएगा तो कैसे अपॉर्चुनिटी रहता है, इनको भी पता नहीं है। फुल फ्लेजेड में मैं काम करने का आया, तभी का सभी भी पूछ रहा है आपको क्या है, अवार्ड है क्या है, कुछ भी ऐसे ही पूछता, अवार्ड रहेगा तो ही हमारा पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता, बोल रहे मेरा पास अवार्ड नहीं। मेरे को तो बचपन से काम आता है, मैं 8 साल उम्र में ही छोटा छोटा चिड़िया बनाया, फिश बनाया, तब से ही काम कर रहा, सीनियर आर्टिजन से ही काम मिला के काम किया, वो तो भी अपॉर्चुनिटीज नहीं आया। तभी मैं थोड़ा ही ऐसे डिजाइनर से कोलैबोरेशन होके काम किया, तब से मैं मार्केट में जाके बाहर घूम रहा था, उससे काम कर रहा, तभी बाहर जाके प्राइवेट एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन किया, तभी पता चला मार्केट में कैसा है। ये अपॉर्चुनिटी से मेन सभी आर्टिजन को एक ही चीज से मिलना है। अभी अवार्ड रहेगा तो उनको अवार्ड दे रहा है, उनको प्राइज मनी दे रहा है, उधर तक बस करना है। सभी अपॉर्चुनिटी है ना, उनको ही दे रहा, अवार्ड है बोल के उनको ही बार बार उनको ही बुलाते हैं एग्जीबिशन को, और नॉर्मल आर्टिजन क्या हो जाएगा गाँव पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वेंकटेश जी, ऐसा है जो अवार्ड जिनको मिला है, अवार्डी आर्टिजन्स के लिए हम लोग कुछ ही एग्जीबिशन जो है रिजर्व रखे हुए हैं।
मास्टर क्रिएशन 2 प्रोग्राम करते हैं दिल्ली हाट में, जिसमें कि अवार्डी आर्टिजन्स को दिया जाता है। ऐसे नहीं है सर, वो भी आ रहे हैं। सॉरी, सूरजकुंड मेला हाँ। में हम अवार्डी आर्टिजन्स को हाँ। देते हैं। बाकी जितने भी इवेंट्स हैं हमारे, मोर देन 200 मार्केटिंग इवेंट्स एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि अवार्डीज का हो। और साथ ही साथ एक ये भी है जो एक जिसको मिला है आज 6 महीने के बाद ही दोबारा मिल सकता हो। और अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, अभी हो आप गया, ऑनलाइन अभी। अप्लाई करें और आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हर एक एग्जीबिशन में अगर हम 100 आर्टिजन्स को बुलाते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राफ्ट्स का रिप्रेजेंटेशन हो। क्योंकि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है मार्केटिंग एग्जीबिशंस पे, पर्पस दोनों है, एक अवेयरनेस जनरेशन भी है, लोग समझें जो हमारे देश की ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है, लिविंग ट्रेडिशंस जो है, उसको समझें, अप्रिशिएट करें, और आर्टिजन का प्रमोशन जो है उसका भी सामान जो है क्राफ्ट बिके। तो आप ये मत सोचिए जो कि सारे आर्टिजन्स जो है जो अवार्डी है उन्हीं को दिया जाता है। अवार्ड अपनी जगह पे है, अवार्ड के लिए ओनली फ्यू एग्जीबिशन रिजर्व है, बाकी सभी में हम अपने कॉमन नॉर्मल आर्टिजन्स जो हैं उनको बुलाते हैं। बहुत कुछ है आप सबसे बातचीत करने के लिए और सीखने के लिए, पर वक्त की अहमियत भी रखनी बहुत ज़रूरी है। अंत में I'd like to close this session, but संक्षेप में कहे तो जैसे जीवन की निशानी है बदलाव, जैसे एक छोटे पौधे का बड़ा होना, उस पे नए पत्ते आना, फल आना, पतझड़ में पत्तों का झड़ जाना, या एक नदी का समुंदर से मिल जाना। अगर नदी का रुक जाए तो वो तालाब बन जाती है और नदी के साथ कभी नहीं मिलती। वैसे ही हमारी शिल्प कलाएं अगर मौसम जैसे बदलती रहेगी तो लोगों के साथ जुड़ी रहेगी। इसलिए इनका वक्त के साथ साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, नई सोच और नए अंदाज के माध्यम से, जैसे आप लोगों ने दर्शाया, जिससे नए लोग भी इसके साथ जुड़े रहे। लेकिन बदलाव के साथ कला के इतिहास को बचा के रखने का उतना ही ज़रूरी है उसकी पहचान को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि इतिहास के आईने में हम क्राफ्ट के भविष्य का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पे आने का और अपनी बात हमारे साथ शेयर करने के लिए।